guys, welcome to my channel. Who is Arya? I know y'all must be wondering who is this Arya. For those who know me already, very good. I'm really proud of it. And for those who don't know me, let me introduce myself. I am Arya Ingle, and in today's video we are going to discuss about my luggage. Yes, the update on my luggage. I couldn't upload this video before because I had my exams and vacations going on and I was pretty busy, and yeah, I couldn't upload it. So yeah, here's the video. Let's get into it. And in today's video we are going to discuss about my update on luggage, and second thing is things to know before taking admission abroad. Let's go. Okay, so starting off with the update on my luggage. First things first, I did not carry my guitar because it was getting pretty expensive for me to get that guitar from India to Russia. क्योंकि एयरलाइंस वालों ने मुझे कहा था कि एक तो कैबिन बैग ही ले जा सकते हैं, वरना एक तो गिटार बैग ले जा सकते हैं. एंड कैबिन बैग में मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे. सो मुझे मेरा गिटार सैक्रिफाइस करना पड़ा. लाइक आई हैड टू कीप इट इन इंडिया एट माई होम. So I'll tell you, rather than getting that guitar from India to here, why don't you think about buying it in here? It would be easy for you. And गिटार यहाँ पे कुछ तो 6,000 to 10,000 के रेंज में आ सकते हैं. Even I'm thinking about buying one. So yeah. Next thing, carry some amount of food items with you while coming. As you're a beginner, you don't know what all things do we get in here, and I'll tell you what all things do we get here. So मसाले नहीं मिलते, बहुत एक्सपेंसिव मसाले हैं. So I'll suggest you कि आप 2 किलो मसाले लेके आना. हल्दी आणि मग लाल मिरची पावडर, मिरच्या, खडे मसाले, गरम मसाला, हे सगळे मसाले तुम्ही भरून आणायला पाहिजे. बिकॉज वी डोंट गेट एनफ ऑफ देम इन हियर. मसाले इतने से पुणे में मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 फॉर 100 ग्राम्स. मसाले लेके आना. थोड़ा सा मैगी लेके आना, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में आपको खाना वगैरह, मतलब लाइक आपको वीजा के लिए जाना पड़ेगा, आपको फीस के लिए जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा, डीन्स में जाना पड़ेगा बहुत बार. सो मैगी का पैकेट लेके आना, सो दैट आपको थोड़ा सा भूख लग गई, बाहर नहीं कुछ खाने को, तो आप अपना कुछ तो बना के लेके खा सकते हैं. टू बी ऑन द सेफर साइड, इट्स बेटर टू हैव समथिंग रेदर देन हैविंग नथिंग. लेट मी टेल यू यहाँ पे लेंटिल्स कौन से मिलते हैं यहाँ पे. ओके, I'll just show you some images in here. यहाँ पे दाल मिलता है, राइस मिलता है, फ्रोजन फिशेस मिलते हैं, फ्रोजन वेजीज मिलते हैं. लेंटिल्स में मिलते हैं दाल, मसूर की दाल, सफेद वटाना, एंड वन मोर लेंटिल. इट्स सो ये सब मिलता है. और 2-3 लेंटिल्स मिलते हैं, लेकिन मैं उनका नाम भूल गई. सो या ओके. सो नेक्स्ट थिंग, डोंट कैरी कोकोनट विथ यू. This kind of coconut, because even I carried this kind of coconut this year. It's dried coconut. And एयरपोर्ट में मैंने जब पहली बार लाइक फर्स्ट वो चेकिंग रहता है लगेज बैग का, so the assistant asked me if I'm carrying this kind of coconut or not. So I was like no, मुझे याद नहीं था कि. So she was like कि if you are carrying this, please remove it. I was like नहीं, मैंने नहीं कैरी किया है. And she took my bag away then. और फिर मैंने जब इमिग्रेशन की द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मैंने जब क्रॉस किया, तब आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द एयरलाइंस. ही टोल्ड मी दैट in my bag they found dried coconut and I need to remove it. So I had to go. They told me to come in customs department. So I went there. They removed the coconut. It was 1 kg, I guess. Yeah. And yeah, they kept it there. And he was like, nothing else is problematic in your bag. So yeah, it was only the dried coconut thing. Don't carry dried coconut with you, guys. I don't know about grated dried coconut. Maybe you can just search it. Wait, we'll search it. Okay, unfortunately
these kind of coconuts, and grated coconuts are not allowed in airplanes, so don't carry coconut. Moving on towards our clothes. यहाँ पे अगर ठंडी -30 में जा सकती है तो गर्मी भी +30 में आ सकता है. सो कपड़े ऐसे भरो कि जो गर्मी में भी तुम पहन सकते हो और ठंडी में भी तुम पहन सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठंडी के ही कपड़े पहन लो, चलो रशिया जा रहे ठंड होगी बहुत. नहीं, यहाँ पे अक्टूबर एंड में ठंडी चालू होती है, अप्रैल एंड से ठंड कम होती है, एकदम कम होती है, एंड गर्मी का सीजन शुरू होता है. नेक्स्ट थिंग, बैटरीज कैरी मत करना. मैंने भी किए थे लास्ट ईयर, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं. मैंने वो पूरे ऐसे पैक लिया था, लाइक वो 12 के पैक्स रहते हैं ना. They told me that you cannot carry these many batteries, so he was like, okay, I'll give you 4 of them. So he cutted 4 of them. He gave me 4 of these to me. So yeah, batteries ज्यादा कैरी मत करना. नेक्स्ट थिंग, एक ही स्क्रब की नीड है, 2 स्क्रब मत लाना. अपने लगेज का वेट मत बढ़ाना. ओके, सो ये था लगेज का. अभी चलते हैं एडमिशन प्रोसेस पे. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप जो भी कंसल्टेंसी से कंसल्ट कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि वो कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं इंडिया में ऑलरेडी. सो आप अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालिए उनकी, कि मतलब उनकी तरफ से कितने बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और कौन कौन पास आउट हो चुके हैं. सॉरी, नॉट लाइक दैट. कौन कौन कॉलेज में से पास आउट हो चुके हैं, एंड कितने यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चे हैं, और उनकी फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल, वो सब. और उनके रिव्यूज भी देखना, मतलब उनके जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे बात कर लेना कि उनके सर्विसेज कैसे हैं एंड ऑल. सो या, जस्ट बी अवेयर, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स हैं इंडिया में. स्टे सेफ गाइज. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट योर यूनिवर्सिटी. प्लीज मेक श्योर कि आप आपके यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा रिसर्च कर लो, क्योंकि कोई कोई यूनिवर्सिटीज रहते हैं जो फर्स्ट 3 इयर्स आपको इंग्लिश में सिखाते हैं एंड नेक्स्ट 3 इयर्स आपको रशियन में सिखाते हैं. लाइक दिस स्विच ऑफ द लैंग्वेज, एंड एंटायर कोर्स इज नॉट इन इंग्लिश. सो प्लीज मेक श्योर कि आपका यूनिवर्सिटी फुल कोर्स इंग्लिश मीडियम में सिखाए. नेक्स्ट थिंग, मुझे बहुत सारे जन पूछ रहे हैं कि वॉर जोन का क्या, वॉर का कुछ इम्पैक्ट हो रहा है क्या हम पे. ओके, द आंसर इज नहीं. यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा. वॉर कहीं पे भी हो रहा होगा, बॉर्डर्स पे ही हो रहा है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा. इनफैक्ट आई एम अलाइव, सो या, नो इम्पैक्ट इन हियर, एंड या, एवरीथिंग्स प्रीटी गुड. कुछ डिस्टर्ब नहीं है. लाइफ वॉर हो रहा है भाई, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, कुछ नहीं वैसा. सो या, इट्स प्रीटी सेफ इन हियर टू बी ऑनेस्ट. ओके, सो मैं भूल गई 2 चीजें बताना. एक है प्लेन टिकट्स और दूसरा है जैकेट. फर्स्ट थिंग इज प्लेन टिकट्स एंड इमिग्रेशन. प्लेन टिकट्स आप अपने साथ ही रखना, पूरे ईयर में रखना, फर्स्ट ईयर के, क्योंकि आपको बाद में लग सकते हैं वो प्लेन टिकट्स. क्योंकि देखो, आप अगर लेट आए तो आपके लेक्चर्स मिस होंगे, एंड अगर लेक्चर्स मिस होंगे तो आपको उसके फाइन भरना पड़ेगा. आपके पास प्लेन टिकट्स है तो आप डीन्स में जाके बोल सकते हो कि नहीं, मैं इस टाइम पीरियड में नहीं थी यहाँ पे, एंड दे वोंट फाइन यू फॉर दैट, फॉर दोज मेनी डेज. जस्ट कीप योर प्लेन टिकट्स विथ यू, डोंट थ्रो देम अवे. एंड द सेकेंड थिंग इज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन का एक छोटा सा पेपर आता है, छोटा सा है लेकिन बहुत बहुत कीमती है. व्हाइट कलर का पेपर आता है, ऐसे चेकर्ड रहता है, उस पे आपका सारा मतलब इंफॉर्मेशन रहता है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज 2 थिंग्स, कि आप कहीं पे घुमा ना दे और फेंक ना दे. ओके, नेक्स्ट थिंग, जैकेट. आप नए नए हो, ठंडी भी होगी, अक्टूबर एंड में आओगे, ठंडी ज्यादा नहीं मिलेगी, होप सो. मैं नवंबर एंड में आई थी, तो मैं जब आई थी तब ठंडी बहुत ज्यादा थी. लाइक मुझे याद नहीं, बट इट वॉज स्नोइंग दैट डे एंड आई वॉज लाइक वाओ, इट्स स्नोइंग, इट इज सो प्रिटी. बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ. लाइक वाओ, कैन यू सी, वहां पे स्नो गिर रहा है, वहां पे तो स्नो जमा भी है. और फिर रियलाइजेशन हिट हुआ. इट वॉज लाइक
सो कोल्ड कि मेरे लेदर जैकेट में से भी मेरे को ठंडी लग रही थी. सो आई प्रेफर यू एक अच्छा खासा जैकेट अपने साथ लाना. इंडिया में मत पहनना, अपने हाथ में रखना. सो कैरी अ नाइस जैकेट, आपको ठंडी ना लगे वैसे. एंड थर्मल्स भी लाना. यहाँ पे हम लोग फेब्रुआरी के मंथ में दो दो थर्मल्स पहन के जाते हैं. दो थर्मल्स, उसके ऊपर मोटा पैंट, उसके ऊपर जीन्स, और फिर बाद में उसके ऊपर अपना बड़ा सा जो कोट रहता है यहाँ का, यहाँ पे खरीदा हुआ वो. एंड फिर वो टोपी, कान टोपी, एंड मास्क और ग्लव्स. बहुत ठंडी रहती है. सो मेक श्योर कि आप थर्मल्स भी लाए. एंड गर्मी भी भयंकर होती है भाई, सही में. ओके, सो या, दैट्स इट फॉर नाउ. And if you are looking forward to take admission in anywhere in Russia, I wish you all the very best. And I hope आपका प्रोसेस सारा का सारा अच्छे से हो जाए. And just make sure कि आपका लगेज ज्यादा ना जाए, like you know वेट से ज्यादा ना जाए, क्योंकि वहां पे वो लोग निकालने लगाते हैं और फिर बाद में आपको वापस से बाहर दे के आना पड़ेगा. And these things are very much complicated, you know. So आप घर से मेजर करके लाना. And what else? I hope you like this video. If you like the video. Also subscribe to my channel for more educational content. And I'll see you in the next one. Till then, take care. Stay safe, guys. Bye bye.